नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, welcome back. The next 3 days we will be doing the Bhagavad Gita sessions. Till now, we've learned how Krishna explains how he is the original seed. अभी तक हमने देखा कि कृष्णा कैसे विश्लेषणात्मक रूप से विस्तार से अर्जुन को बताया है कि कैसे वो मूल बीज है। फिर वो अपने कुछ लक्षणों के बारे में बताया है जो हम निज जीवन में, दैनिक जीवन में देख सकते हैं और उससे कृष्णा की याद हम कर सकते हैं। We can remember Krishna by a few things that we see in daily life, and Krishna has made it easy for us to remember him by giving us these instances. So what we learned was, in conclusion, what we learned so far, अभी तक हमने क्या सीखा? All things are coming from Krishna. सब कुछ कृष्णा से ही उत्पन्न हो रहा है। All things are through Krishna. तो सारे चीज कृष्णा के माध्यम से ही आ रहा है। And all things are in Krishna. तो सब कुछ कृष्ण भगवान के अंदर ही है। तो everything that we see, we hear, we have, we ourselves, and anything that we can conceive of is a part and parcel of Krishna, either separated energy of him or eternal energy of him. So a devotee thinks, भक्त क्या सोचता है? Everything is by Krishna, for Krishna and of Krishna. तो एक भक्त सेवा मनोभाव में कैसे आता है? क्योंकि उसको ज्ञात हो गया है कि सब कुछ कृष्ण भगवान से ही आ रहा है, तो सब कुछ कृष्ण भगवान का ही है और इसीलिए सब कुछ कृष्ण भगवान की सेवा में ही उनको लगाना, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सो this is the principle and basis of devotional service, that since everything belongs to Krishna, क्योंकि कृष्णा का ही सब कुछ है, तो सब कुछ कृष्ण भगवान के लिए ही उपयोग होना चाहिए उनकी सेवा में. So the 4B formula हमें अपनाना है अपनी जिंदगी में. 4Bs, the English alphabet B. क्या है 4B? Balanced bhakti brings bliss. Balanced bhakti brings bliss. भक्ति भी बैलेंस्ड होना चाहिए. That is why we are right now in विधि भक्ति, वैधि भक्ति, साधना भक्ति. एकदम से if we start imitating pure devotees, अनुकरणा अगर हम करना चाहेंगे तो बुरी तरह miserably we will fail, and then that will be another turning chapter in our life in the wrong direction. So we must keep the pure devotees as our ideals,
we must know their leelas and pastimes and how Krishna reciprocated to them. We must try to become like them, but we must not jump and imitate and ढोंगी बाबा नहीं बनना है. तो किसी को ढोंगी बाबा नहीं बनना है. तो हम अगर अनुकरण करेंगे तो हम सब ढोंगी बाबा ही कहलाएंगे. तो धीरे धीरे स्टेप वाइज in a systematic manner we go about our sadhana in Vaidhi Bhakti, so that will purify us and help us accommodate more changes within ourselves. So in Bhakti the sadhana Bhakti is a drifting nature. It should not be a shifting nature. Suddenly मैंने कुछ कर दिया तो कुछ अहित घटना हो गया घर में, some unpleasant thing in the house or in the society, community, workplace, तो immediately हमने सोच लिया हम ये सब छोड़ना चाहिए, हमें मतलब बस वन में जाना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, साधु बनना जाना चाहिए, संन्यास ले जाना चाहिए. It's a natural thought for all living entities, especially human beings. That is called as Vairagya, but this Vairagya is not Paripakva Vairagya. Although Vairagya is the requirement for complete Bhakti, and our Vairagya is Yukta Vairagya. Yukta Vairagya is nothing will be rejected. Everything will be utilized for the present, for the service of the Lord. So this is Yukta Vairagya. Saying that I don't want this, I don't want that, that is Falgu Vairagya. क्योंकि वो चीज भगवान का है तो उसको ले लीजिए और भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए आप उपयोग कीजिए. This is how a bhakta thinks and goes by the principle of, spiritual principle is utility is the principle. Everything can be utilized for the service of the Lord. Anger can be utilized for the service of the Lord. अरे ये कैसे? मतलब angry होना एक डिवोटी का लक्षण नहीं है. That's not an absolute rule. आप सही चीज के लिए सही मात्रा में सही वक्त पे you can be angry. For example, हनुमान, उन्होंने क्रोध से लंका को जलाया. क्रोध से किसी के घर जलाना ये तो बुरी बात है, और इसने तो पूरी शहर जला दिया हनुमान जी ने. लेकिन उसको भी हम आदर से देखते हैं. We remember this Leela as one of the acts of bhakti. We do not dismiss it as an act of arson. किसी के घर में आग लगाना होता है act of arson है, punishable by law. लेकिन हनुमान का लंका दहन लीला हम भक्ति से याद करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, क्योंकि वो एक दुष्ट का लंका को उसने जलाया. उसमें रहने वाले सारे लोग भी दुष्ट थे, क्योंकि तथा जैसे राजा तथा प्रजा, तो उसको तो बिठा दिया है सिंहासन पे, तो obviously they will also be like him. So this is the principle. So the Krodha also can be utilized for the, but we should not try to imitate हनुमान. ये बोल के कि किसी के घर में आग लगा दिया उन्हें और ये बोल दिया अरे हनुमान ने भी लगाया था, तो फिर हनुमान को तो जेल नहीं हुआ, हमें हो जाएगा. So we should not go by anukarana. We must go by anusmarana. That yes, see, even a pure devotee can utilize this krodha in the service of the Lord. So we are in sadhana bhakti. We must slowly progress towards that. So what we have learned so far is God underlies, overlies, and outlies the world. तो भगवान इस सारे सृष्टि का आधार है. भगवान के ऊपर ही सारा सृष्टि टिका है और भगवान सारा सृष्टि का देखभाल कर रहे हैं, लेकिन भगवान सृष्टि से अलग है. He underlies, outlies, and overlies the world. So ये कहते हुए we will continue with today's set of shlokas. Today starting with shloka number 12 of chapter number 7. Chapter number 7 is knowledge of bhakti. Bhakti का knowledge of absolute. परम सत्य का ज्ञान. परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है.
So in this shloka, we are learning about the different modes of nature and their connection with Krishna. सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, उनका अस्तित्व और उनका कृष्ण के साथ क्या संबंध है। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्व अहम तेषु ते मही। कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? All states of being. What are the states of being? 3 states. Goodness, passion और ignorance. तो सारे अस्तित्व जो है सत्व गुण जो रजोगुण में है, जो तमोगुण में है या इनके मिश्रण में है, जो भी है, are manifested by my energy. तो ये सारे गुण भी मेरे ही शक्ति है। ये च एव सात्विका भाव, राजसास भाव, तामसश्च भाव. All these 3 are energies of Krishna. They are the servants of Krishna. And Maya plays with this modes in our lives. And I am in one sense everything. Matta eveti tan viddhi, natva aham teshu te mahi. But I am independent. तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं एक दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं। आई एम नॉट अंडर द मोड्स ऑफ दिस मटेरियल नेचर। मैं रजो सत्व और तमोगुण के नीचे नहीं आता हूं, वो मैं उनके ऊपर हूं, वो मेरे अधीन है और उन्होंने मैंने माया को दे दिया है, जो मेरे एक भक्त है, मेरे एक डिवोटी है। इस भौतिक जगत में इन तीनों गुणों को उपयोग करके जीव को बंदर का नाच नचाने के लिए। So all material activities in the world are conducted under 3 modes of mental nature. भौतिक जगत में सारे कार्य रजो सत्व तमोगुण के आधार पे टिका है। इनका मिश्रण भी हो सकता है, सत्व रजा, रजा तमः, सत्व तमः। सत्व तमः is extreme, but it can also happen. All these material modes of nature are emanations from Supreme Lord. सब ये गुण भी कहाँ से आ रहे? भगवान श्री कृष्णा से। So in other words, everything is manifested from the Supreme Lord itself and in the service of Supreme Lord itself. For instance, under the state laws one may be punished, but the king, the lawmaker, is not subjected to that law. तो राजा जो कानून है उसकी व्यवस्था के नीचे नहीं आता है, राजा कानून का व्यवस्था करता है। But now in democratic this one, even the prime minister can be subjected to the law of the land. Why is it like that? Why in olden days it was not like that? In this day, because you know it is Kali Yuga and everybody is fallible. So even the prime minister, may the Lord give him sadbuddhi and may he continue to do his good work. But it's a fact that any prime minister also is a jiva in this world. Of course, by Lord's grace, after many years, we've got a very nice prime minister. But it is also a fact that everybody is following. He is spiritually very powerful, so he has brought himself to this stage. But in olden days, जो राजा होते थे वो राजा ऋषि होते थे। So राजा ऋषि कौन है? राजा ऋषि is one who is in Shuddha Sattva. Just give me 1 minute. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. So शुद्ध सत राज ऋषि था, उसका ट्रेनिंग होता था बचपन से, बिकॉज इज वो राजा का बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब सुख ऐशो आराम में वो पाल पोस के बड़ा हुआ है, नहीं। राजा उसको 5 साल के आयु में गुरुकुल भेज देता था। सारे प्रजा के जो संतान होते थे उनके साथ उनका विद्याभ्यास होता था और वहां पे प्रत्येक उनको राजा कैसे बनते हैं, राजा का लक्षण क्या है और राजा एक राज्य को, राष्ट्र को
कैसे उसको रूल करना है, हाउ टू रूल द country. He would be taught by the Rajguru, and this is how the education. And he would also be taught all other things that the other students would learn. He would be with them. तो इसीलिए बोलते हैं ना, जो सेवक नहीं बन सका वो राजा नहीं बनेगा, राजा नहीं बन सकता. One who doesn't have the qualities of a servant, who doesn't know how to serve, cannot become a king. तो उसको बचपन से ये पाठ पढ़ाया जाता था. He will be very well educated, very well trained to become a king. आज ऐसा नहीं है. आप लोगों को सपोर्ट लेके एक फॉर्म फिल कर दो और डिपॉजिट करो आप कुछ पैसे, और आप कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हो, है ना. So it was not like that in the olden days. Only qualified people could become representatives of the state. And राजा के बारे में तो क्या कहना. अगर राजा के पुत्र नालायक है उसको राजा नहीं बनाया जाता. कोई भी हर हाल में उसको राजा नहीं बनाया जा सकता. वो तो द्वापर युग के अंत में नालायक राजा मतलब रूल करने लगे, वरना it was not possible. So similarly, all modes of material nature, goodness, passion, ignorance, are emanations from the Supreme Lord, but Krishna is not subjected to material nature. So the aham natva aham teshu te mahi, I'm independent of it. Therefore he is called nirguna. इसलिए भगवान को निर्गुणा बोलते हैं. इसलिए नहीं कि उसके पास उनके अंदर कोई गुण है ही नहीं, उनके अंदर गुण है, शुद्ध सत्व है वो. निर्गुणा मतलब doesn't have this भौतिक सत्व रजस तमो गुणा, which means that these gunas or modes, although issuing from him, do not affect him. तो उनसे आ रहा है लेकिन उनके ऊपर प्रभाव नहीं हो रहा है कृष्ण के ऊपर. That is one of the special characteristics of भगवान. ये भगवान का एक विशेष गुण है कि वो निर्गुण है. और निर्गुण का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुणी है नहीं, गुण है ही नहीं उसके अंदर. नो, doesn't, is not influenced or doesn't have sattva rajas tamo guna. He is beyond all this. He is having shuddha sattva, divya sattva guna. So we will move ahead to shloka number 13. So we come to a different aspect, different section with shloka number 13. So we've learned in the previous chapters that up to shloka number 12, shloka number 4 to 12 was knowing Krishna's material and spiritual energies. कृष्णा अभी तक हमें उनके सारे शक्तियों के बारे में सिखा रहे थे. पहले 3 श्लोक में कैसे हम मन को कृष्णा के ऊपर लगा सकते हैं वे सिखाया. फिर अगले अभी 9 श्लोक में कृष्णा has taught us how he manifests the energies, what are his energies, and how he is having different energies, the knowledge of these energies. Now in the next 2 shlokas, 13 and 14, what we are going to learn, how Krishna controls the mode and therefore why we should surrender. क्यों कृष्ण भगवान के शरण में हमें जाना चाहिए, अभी हम सीखेंगे. It's not again sentiment, there is also a philosophy. वैदिक ज्ञान है उसके पीछे, क्यों कृष्ण के शरण में जाना चाहिए. Why you must surrender to Krishna and only Krishna. So we will learn that. तो श्लोक नंबर 13, त्रिभिर गुणमयैर भावैर ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम. So deluded by the 3 modes. तो तीन गुण क्या है, सत्व रजस तमो. त्रिभिर गुणमयैर भावैर, इन भावों से. The whole world does not know me. ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति, न अभिजानाति, मुझे नहीं जानते हैं. इस भौतिक दुनिया के लोग मुझे नहीं जानते. कोई भी जीव मुझे ठीक तरीके से, पूर्ण तरीके से नहीं जानते. देवता भी भौतिक जगत में ही है, वो भी भौतिक जगत है. इट इज नॉट आध्यात्मिक जगत, स्वर्ग लोक तो हमसे बेहतर है, बट वो भी न जानाति. वाई मोहितम, क्योंकि वो मोहित है, डिल्यूडेड है. टू डिफरेंट लेवल्स वे आर डिल्यूडेड. एक चींटी बहुत ही डिल्यूडेड है, एक देवता कम डिल्यूडेड है लेकिन डिल्यूडेड है. डिल्यूडेड मतलब भ्रमित है. सो द होल वर्ल्ड डज नॉट नो मी. अब होल वर्ल्ड क्या, अनंत देव
जो उनका शैया है विष्णु के अवतार में, वो खुद नहीं अभी खत्म किया उनका गुणगान, अभी तक अनादिकाल से गुणगान कर रहे कृष्ण का, उनके लाखों हजारों मुख से अभी तक उनका वर्णन खत्म नहीं हुआ। कृष्ण खुद बोलते हैं कुछ ऐसी चीजें जो मैं अपने बारे में भी नहीं जानता। ओनली वन पर्सन हु नोस कृष्णा फुल्ली। कौन है ये? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी इज द ओनली पर्सन हु नोस कृष्णा फुल्ली, वरना कृष्णा भी अपने आप को पूर्ण तरीके से नहीं जान पाए। तो आप सोचेंगे फिर तो भगवान कैसे बन गए, उनमें कमियां हो गया। तो भगवान परिपूर्ण है, तो कमियां रहना भी उनका एक परिपूर्णता है, लेकिन कमियां हमारे जैसे कमियां नहीं है, नालायक चीजों के लिए कमियां नहीं है, वो तो उत्तम चीजों की बात कर रहे हैं। कुछ चीज उन्होंने भक्तों के लिए छोड़ दिया। मुझे अपने आप को नहीं जानना है, जान नहीं पाऊंगा, आप जान लो। तो भक्त, शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी नोस कृष्णा, एंड द हाईएस्ट द स्टेज ऑफ pure devotional service, the most pure devotee is Srimati Radharani. That's why Krishna is so much in love with her, because Krishna is saying ye yatha mam prapadyante, जैसे एक भक्त मुझसे व्यवहार करेंगे, व्यवहार नहीं बोलना चाहिए, भक्ति करेंगे, वैसे मैं भी रेसिप्रोकेट करता हूं। तो राधा रानी कौन है? सबसे श्रेष्ठ भक्त, सबसे उत्तम भक्त वो है। तो उसके प्रति वो अपने आप को शरण कर देते। कृष्ण भक्त वत्सल है, कृष्ण भक्त के शरण में है, और जो सबसे बढ़िया भक्त है राधा रानी, उनके तो पूर्ण शरण में है। उनके पैर भी छू के उनके पैर के रज को वो अपने सर को लगा सकते हैं। और ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर का रज को भी, पैर का रज को भी अपने सर पे लगाते थे। भीष्म का जो भक्त है कृष्ण का, उनके सर पे लगाते थे। तो राधा रानी का क्या कहना है? वो अपने आप को पूर्ण तरीके से राधा रानी के हवाले कर दिया। ये बोलते हैं कि मेरा नाम बोलेंगे, इफ यू टेल माई नेम आई मे कम आई मे नॉट कम, लेकिन तुम राधे राधे बोलोगे तो मैं जहां कहीं पे भी हूं, मैं धड़ाम करके आ जाऊंगा आपके पास, क्योंकि आपने मेरे शुद्ध भक्त का नाम लिया है। सो कृष्णा इज टेलिंग दिस। तो हरे कृष्णा इज नथिंग बट राधे कृष्णा। So when we're chanting Hare Krishna, when we're saying Hare Krishna, we're telling Radhe Radhe only. Radhe Radheya. Radhe and Krishna. Radhe and Radhe Kha. Who is Radhe Kha? Radhe Kha कौन है? कृष्ण भगवान है। हरे कृष्णा, हरे कौन है? राधा रानी और कृष्णा। So we are also telling, we are remembering Radha Rani and Krishna. Krishna therefore is there on the tongue of the person, in the ears of the person, in the heart of the person, in the mind of person, in the life of person who is chanting Hare Krishna Mahamantra. And who am above the modes and inexhaustible, Mamebhya Param Avyayam. I am above these three modes, और मैं अव्यय हूं, I am inexhaustible. मेरा कोई आदि नहीं है, मेरा कोई अंत नहीं है। तो कृष्ण भगवान अपना पहचान हमें अभी दे रहे हैं, और अपना पहचान उनका पहचान प्लस उनका क्या संबंध है त्रिगुणों से, वो हमें बता रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The whole world is enchanted by the three modes of material nature. Those who are bewildered by these three modes cannot understand that transcendent और कर्म है, वैसे उनको देह मिला है, और जैसा देह है उनका कार्य है। There are four classes of men functioning in the three material modes of nature. तो चार तरह के मानव हैं। Those who are purely in mode of goodness are called brahmanas. जो शुद्ध जो सत्व गुण में है, वो उनको ब्राह्मणा कहते हैं। में है वो वैश्य है। Those who are completely in ignorance are called shudras. और जो पूर्ण तरीके से तमोगुण में है, उनको क्या बोलते हैं? उनका गुण क्या होता है? वो शूद्र गुण के होते हैं। So this four classification of order was that Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. That is the social orders
are based on guna and it's based on their abilities, karma, are not based on birth. So and those who are less than that are animals or animal life. और इनसे कम जो है, जो तमोगुण से भी नीचे हैं, वो प्राणी बन जाते हैं, पंछी बन जाते हैं. However, these designations are not permanent. तो शूद्र है तो शूद्र ही रहेगा नहीं. विद्याभ्यास से, एक अच्छे गुरु के कृपा से, उनके सेवा से एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है. तो ऐसा नहीं कि जन्म से कोई ब्राह्मण बनेगा, हो ही नहीं सकता. जन्मना जायते शूद्रा, जो भी इस कलयुग में जीव है वो जन्मना जायते शूद्र, हर व्यक्ति शूद्र बन के पैदा होता है. फिर संस्कारों से वो द्विज बन जाता है. द्विज मीन्स द नेक्स्ट 3 कैटेगरीज, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण. सो एनीबडी कैन इवन बिकम brahmana by proper education under a proper guru. Anyway, either brahmana, kshatriya, vaishya, whatever, in any case, this life is temporary. और सिर्फ इस जीवन का भी बात है नहीं है, अगले जीवन में पता नहीं हम क्या करेंगे. आपका जीवन carry our guna and karma, but if you are doing a lot of bad activities, you will get animal life, bird life, other life. Then, or if you are doing very nice activities, can become devatas up to Brahma. If you are devotees, we can as servants go back to Goloka and serve the Lord as we are serving him here, or in a much better way. So although life is temporary, we do not know what we are going to be in the next life. Still, by the spell of this illusory energy, we consider ourselves in the light of this bodily conception of life. हम यही समझते हैं कि हम ही ये देह ही हम है और ये परमानेंट है और इस देह के बाद कुछ नहीं है. हम ऐसे सोचते हैं, ये गलत सोच है. We thus think that we are American, Indian, Russian, Brahmana, Hindu, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ. And if we become entangled with the modes of material nature, और हम इसी गुण में, त्रिगुणों में फंसे रहे, then we forget supreme personality of Godhead. भगवान को भूल जाएंगे. माया अपने वश में ले गई, बंदर का नाच नचा लिया और इतने व्यस्त हो गए हम नाचते नाचते, अपने आप को बचाते बचाते भगवान को हम भूल गए. So the Lord says that men deluded by 3 modes of nature do not understand that behind material background is supreme Lord. तो ये सब जो जगत में हो रहा है, सबका पीछा शक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण है. Krishna is not the cause of something wrong that is happening. So what is happening wrong is possible because the energies of the Lord are there and somebody is misusing it. There are many different kinds of living entities. तो जीव भी अनेक तरह के हैं. मानव, human beings, demigods, देवता, प्राणी, animals, पंछी, birds, trees. Trees have life. हम यही सोचते हैं जगदीश चंद्र बोस ने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, मॉडर्न साइंस ने डिस्कवर किया. जी नहीं सर, हमारे पद्म पुराण में दिया गया है कि हम जीवों के कैटेगरी में पेड़ पौधे को भी जीव ही बताया है. So we cannot fool others saying that this is all from modern science. पहले ही है हमारे वेदों में कि पेड़ पौधे में भी जीव है, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस इतना लो है, ऑलमोस्ट वो निर्जीव है. मतलब they're so low in conscious that they're almost unconscious. और उनके लिए वो अच्छा है. Just imagine standing in one place, rain, snow, hot summer, अग्नि में जल रहा है, तो वो सुप्त स्थिति में रहता है, वो उसके लिए बेहतर है. Just imagine a tree has full consciousness. बारिश आ रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, हॉट समर है, कितना कष्ट होगा उसको. तो Lord has made these things. और कौन पेड़ कौन बनता है? Who becomes trees? जो इस जीव में हमें, जो उत्तम जीव में हमेशा नग्न रहना चाहते हैं, naked. They want to be naked. They like to go to naked dance, naked beach. कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं. ऐसे जीव को क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान? अच्छा ठीक है, तो फिर आपको उत्तम मैंने योनि दिया था, आपको भक्ति नहीं करना, आपको यही करना है ना, और एक बेहतर बॉडी में दूंगा आपको. पेड़ पौधे बन जाइए, ना कपड़े, ना कुछ पहनना, ना कुछ उतारना. So this is how
the trees come into existence. तो इतने सारे पेड़ पौधे हैं, कितने पापियां पाप करके आ चुके हैं, आप देख लीजिए. So finally in this Prabhupada, Prabhupada says Krishna consciousness is transcendental to all these three modes. तो जब कृष्ण भावनामृत में हम आ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो रहा है, slowly we become free from these three modes, and those who are truly established in Krishna consciousness are actually liberated. जो कृष्ण भावनामृत में अच्छी तरह स्थित हो चुके हैं, firmly fixed, becoming pure devotees, they're already liberated. Liberated मतलब क्या है? Not having material consciousness. तो इस जीवन में भी we can come to that state of being liberated, becoming fully uncontaminated by three modes, becoming Krishna conscious fully. Going further, Krishna says, continuing with this particular shloka, ठीक है, माया में सब लोग फंसे हुए, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? कृष्ण बोल रहे ऐसा कैसे हो सकता है? When there is a problem, there is a solution also. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है. What is that? दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते. कृष्ण इज टेलिंग दैवी एषा गुणमयी. हाँ, मैं मानता हूं कि ये जो मेरा दैवी शक्ति है, ये जो माया शक्ति है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण. I think again for some time screen will not be visible. You can just listen to what I'm saying. Some issue in my network. So Daivi Esha Gunamayi. This divine energy of mine, माया जो है वो मेरे आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन भौतिक जगत में उसका कारण नहीं मिलेगा. माया देवी का 10 हाथ, दुर्गा का 10 हाथ, आपके 2 हाथ, आप 2 हाथ से 2 हाथ पकड़ लेंगे और 8 हाथ हैं. कैसे उससे छुटकारा आएगा? नहीं पा पाएंगे लड़ते लड़ते माया से. तो क्या सॉल्यूशन है? कृष्णा इज टेलिंग, बट दोज हु हैव सरेंडर्ड अनटू मी मामेव ये प्रपद्यन्ते, उनका क्या होगा? कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट. मायाम एताम तरन्ति ते. माया को आपको पार करना है, माया की ये पकड़ से, जकड़ से आपको फ्रीडम चाहिए, मुक्ति चाहिए. मामेव ये प्रपद्यन्ते, surrender unto me. Krishna started already giving clues about why we should surrender unto him, and in the 18th chapter he gives conclusively sarva dharman parityajya mameka sharanam raja prapadyante sharanam raja. क्यों? आम तम सर्व पापेभ्यो, आम तम सर्व पापेभ्यो, आपके सारे पाप को मैं मिटा दूंगा. मतलब त्रिगुण से आप पार हो जाएंगे. Then what I will do? Ma Shucha, he's saying, don't worry, I will give you mukti. Moksha isyami ma Shucha. तो यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं? माया मेताम तरंती थे. So he is able to take us out of Maya. What is that taking out of Maya? It is moksha isyami. 18वें चैप्टर में फिर वो कंक्लूड करते यही कंक्लूजन. So the Supreme Person of Godhead has innumerable energies. अनेक शक्ति है, बहुशक्ति है भगवान का. All these energies are divine. सब दिव्य शक्ति है. भगवान से आया तो सब दिव्य शक्ति. हम भी भगवान से आए हैं. मार्जिनल एनर्जी दे रहा दिव्य शक्ति होंगी, लेकिन हम अभी ऐसे हो गए हैं. Although the living entities are part of his energies, therefore divine, due to contact with material energy, the original superior power is covered. तो हमारा जो एनर्जी, जैसे कि कोई ये लैंप है, इस लैंप के ऊपर मैं कुछ ढक दूंगा तो प्रकाश कहाँ से आएगा? प्रकाश तो जल रहा है अंदर, लेकिन प्रकाशमान नहीं हो रहा है. मतलब वो हर जगह प्रकाश फैला नहीं पा रहा है, ढक गया है. सो लाइक दैट वी आर, हम भी भगवान के प्रकाश है हमारे अंदर, बट वो ढक गया है. माया देवी उसको ढक के बैठी है, इस देह के माध्यम से ढक के बैठी है, त्रिगुणों से उसको दबा दिया है. सो as previously stated, both material and spiritual energies are emanations from personality of Godhead. तो भौतिक शक्ति भी और आध्यात्मिक शक्ति, सारे शक्ति भगवान से ही आ रहा है. The living entities belong to the eternal superior energy of the Lord, but due to contamination by inferior nature, matter, the illusion is also
एटर्नल। तो भ्रमित चिरकाल हो सकते हैं जब तक ये देह के कॉन्शियस हम हैं. इफ वी आर बॉडी कॉन्शियस, विल कंटिन्यू टू रिमेन इग्नोरेंट. एंड देन द कंडीशन सोल इज कॉल्ड नित्य बद्धा. हमेशा हमेशा के लिए बंधन में फंस जाते हैं त्रिगुणों के, माया के. इस भौतिक जगत में अनेक योनि पुनः पुनः लेना पड़ेगा. So then, the release from the clutches of material nature is very difficult. Mama Maya Duratyaya. Energy is ultimately conducted by the supreme will, material or spiritual. And living entity cannot overcome the material energy without the help of Lord. तो भगवान की मदद से हम कर सकते हैं. So inferior material nature is defined herein as divine nature due to its divine connection and movement by the divine will. क्योंकि प्रकृति भी जो inferior energy है वो भी भगवान से ही आ रहा है, उसको भी दिव्य शक्ति ही बताया गया है, although it is inferior energy. And Vedas also confirm this, that mayam tu prakrutim vidyan mayinam tu maheshwaram. But it means although Maya is false or temporary, the background of Maya is supreme magician Krishna. माया का डायरेक्टर कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है. त्रिगुणों का डायरेक्टर माया देवी, माया देवी का डायरेक्टर कृष्ण भगवान. Who is Maheshwara, the supreme controller? Mahinam to Maheshwara. Another meaning of guna is rope, dhama, बंद जाना. बंदे कैसे जाएंगे? रोप से, धाम से. तो ये त्रिगुण गुण भी एक ऐसा बंधन है. It is demonstrated that conditioned soul is tightly bound by the ropes of illusion. तो ये माया के जो त्रिगुण हैं उनसे हम बुरी तरह फंसे हुए हैं. Because the bound cannot help the bound, rescuer must be liberated. तो मैं भी बद्ध हूँ, आप भी बद्ध हो, एक दूसरे का मदद हम ऐसे ही नहीं कर सकते. तो गुरु जो he is free, he is liberated, he can liberate us. और by listening to his instructions, we can liberate each other, not by ourselves. So devotional service or Krishna consciousness can help one gain such release. तो कैसे इससे बाहर आएंगे हम कैसे भौतिक बंधन से बाहर आएंगे? कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भगवान की सेवा करते करते. So finally, we must understand that our abilities are our endowments and not our entitlements. जो भी शक्ति है मेरे अंदर उससे हमको गर्व नहीं होना चाहिए. We should all think that it's all coming from Supreme Lord. उसका सदुपयोग भगवान की सेवा में हमें करना चाहिए. So spiritual surrender is not an admission of defeat, it is a vehicle to victory. तो भगवान की शरण में जाना हार जाना नहीं है, भगवान के शरण में जाना सबसे बड़ा जीत है. माया देवी से आप जीत गए हैं, ये इसका तात्पर्य है. Thank you very much for joining me today. We'll again come together tomorrow at the same time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare